Good morning, dear students. We are continuing with chapter number 2 in business studies, that is forms of business organization. Earlier in this topic, we have covered sole proprietorship and today we are going to do partnership. So let's have a quick recap of sole proprietorship. What we have studied in sole proprietorship. Sole proprietorship is that type of business where there was only a single trader doing that business, जहाँ पर business का एक single owner होता है. You must have seen so many shops जो एक single owner ही run करता है. लेकिन हमने वहाँ पर उस बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किए थे. There were some of the limitations of sole proprietorship, like there were limited resources. In sole proprietorship there are limited resources because एक सिंगल ओनर ही बिजनेस को रन कर रहा है, तो उस सिंगल ओनर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज उसकी जो पर्सनल सेविंग्स हैं, उसकी जो बोरिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ लिमिटेड. देन द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप वाज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न बिकॉज when a single owner is doing a business due to bankruptcy, due to his insolvency, or some any other reason, due to his illness or death, the business automatically has to be closed off. Then unlimited liability. The liability, what do you mean by liability? The capacity to pay the debts, that is also unlimited in case of sole proprietorship, because in case the business is closed and the sole owner is not able to pay the debts, then his personal property like his house, his car, whatsoever he is having, that may also be used for the payment of debts. Then limited managerial ability also is there. This is one of the most important advantage of sole proprietorship, where we cannot assume all the managerial abilities like purchasing, selling, financing, production, marketing, etc. in a single person. So to overcome all these limitations, we thought about कि हम एक और पर्सन को अपने साथ क्यों ना ले आए. सोल ओनर सोचता है कि ये मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है और मैं अपने बिज़नेस को प्रॉपरली कैरी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास फिनेंस की कमी है या मेरे पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, तो व्हाई नॉट आई शुड टेक हेल्प ऑफ अनदर पर्सन. तो इस तरह से जो पार्टनरशिप बिजनेस है दैट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? As it is clear from the name, partnership is a combination of two words, partner. What do you mean by partner? When we are doing our work with some another person, that is known as partnership. Now what is partnership? It is an association of two or more than two persons. Obviously when we are doing partnership, तो एक person तो partnership नहीं कर सकता है, तो minimum कितने लोग चाहिए partnership करने के लिए? Two. तो partnership is an association of two or more than two persons who willingly agree to carry on some lawful business jointly and share the profits and losses of the business. Now what I have read here, partnership is an association of two and more person. यहाँ से आपको partnership का फर्स्ट फीचर क्लियर हो रहा है, दैट इज इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू एंड मोर पर्सनस. पार्टनरशिप करने के लिए एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट दो लोगों की रिक्वायरमेंट उसमें पड़ती है ना. अब बात आती है मैक्सिमम की. ऐसा नहीं है कि कितने भी लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को कर सकते हैं. नो, देयर इज़ अ लिमिटेशन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो. देयर आर 20 दैट इज़ फॉर अनदर बिजनेस एंड 10 फॉर द बैंकिंग बिजनेस. मीन्स अगर आप कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम आप 10 पार्टनर हो सकते हो, और अगर आप बैंकिंग के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 20 पर्सनस उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. येस, पार्टनरशिप, क्योंकि हमने अभी अभी जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन की है, आपकी जो डेफिनेशन है वहीं से आपको सारे के सारे पार्टनरशिप के फीचर्स मिलते हैं.
Partnership is an association of two and more than two persons, that we have done just right now, who willingly agree to carry on. Agree means there is a contractual relationship between the person who are doing the partnership business. वो willingly hand join कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो. और when you are doing a contract, you must be competent to doing the contract. Means a minor cannot enter in the contract. Now who is a minor? A person below the age of 18 years is considered as minor. So you must be a major. Then second thing, you must not be insane. Next is sharing profits and business. Whenever you are coming in a partnership, you have to share. You have to share the profits also. You have to share the loss also. When you are doing an agreement, you are doing the agreement to share the profits also and to share the loss also. Then existence of lawful business. This is very, very, very important feature of the partnership. Whenever you are entering in the partnership, you should enter to do a legal business. If you are entering in a partnership to do a illegal business, that is not considered as partnership, and the provisions of Indian Partnership Act 1932 वो भी यहाँ पर प्रिवेल नहीं करेंगे. सपोज आप किसी गैम्बलिंग बिजनेस के लिए या सपोज स्मगलिंग के लिए, दो लोग हैं वो स्मगलिंग करना चाहते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और वो एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा. देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सपोज मैंने अभी आपको बोला कि देयर आर टू or more than two persons who will carry on the business of partnership. So अगर सपोज एक पर्सन उस टाइम पर बिजनेस में प्रेजेंट है और दूसरा पार्टनर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर एक पार्टनर ने कोई डिसीज़न लिया है, वो यही माना जाएगा कि वो पार्टनर ने डिसीज़न नहीं लिया है, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म ने डिसीज़न लिया है. ठीक है, जो पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं अलग अलग हम उनको पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली हम उनको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. देन अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप. इन पार्टनरशिप ऑल्सो द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. मीन्स एक्सेप्ट माइनर कैन एंटर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, लेकिन वो पार्टनरशिप के डिसीजंस नहीं ले सकता है. उनके अलावा जितने भी पार्टनर्स होंगे, जो भी मेजर पार्टनर्स होंगे, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. मीन्स कि अगर कल को पार्टनरशिप बिजनेस किसी भी वजह से वाइंड अप होता है और पार्टनरशिप बिजनेस फर्म के डेट्स पे करने के लिए नहीं कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फर्म के पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो डेट्स कवर अप किए जा सकते हैं. एंड लास्ट इज वॉलंटरली registration. It is not at all compulsory to register a partnership firm, but it is not necessary. It is not compulsory. I should say it is not compulsory कि you get registered your partnership firm, but it is necessary. आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बेशक रजिस्टर ना करो, बिकॉज लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है, बट नेसेसरी होता है कि आपको करवा लेना चाहिए. गॉट इट? सो देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और features of partnership business, that is two or more persons, contractual relationship, sharing profits and business, existence of lawful business, principal agent relationship, unlimited liability, and voluntary registration. Then there comes merits of partnership form of organization. What are the merits? Easy to form, because मैंने अभी आपको बताया कि आपको पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कराओ. There are some legal formalities. आप वो legal formalities को पूरा कीजिए, and then with the association of two or more than two persons you can form a partnership
बिजनेस. अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिसोर्सेज. येस, सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था? एक सिंगल ओनर है, उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. उसकी जो बोरिंग कैपेसिटी है या उसकी पर्सनल सेविंग्स हैं वो लिमिटेड होती है. बट यहाँ पर क्या है, आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो अलग अलग लोगों के रिसोर्सेज इस बिजनेस में लगे हैं, तो आप एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो. बेटर डिसीजन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर अब एक पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है, वो पर्सन अदर पर्सन से कंसल्ट करके डिसीजन ले रहा है. एंड वेन एवर देर आर टू और मोर देन टू पर्सन्स आर एसोसिएटेड विद अ डिसीजन, something better always comes out. Flexibility. Partnership is a flexible organization. Why? Because if I have to change the business, suppose I have to change the nature of the business or I have to expand my business, कि अभी suppose मैं सिर्फ कुरुक्षेत्रा में बिजनेस कर रही हूँ लेकिन मुझे अपने बिजनेस को 2 और मोर सिटीज़ लाइक करनाल में, अम्बाला में भी एक्सपैंड करना है, तो इट कैन बी ईजिली बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. देन शेयरिंग ऑफ रिस्क. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? बिजनेस के जितने भी रिस्क हैं वो सिंगल ओनर ही उठाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है? डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में. कीन इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्म के प्रॉफिट्स के लिए भी और लॉस के लिए भी. तो पार्टनर्स को पता है कि अगर हमारी फर्म लॉस में जाएगी तो वो लॉस भी हमें उठाना पड़ेगा, अगर हमारी फर्म प्रॉफिट में जाएगी तो वो प्रॉफिट्स भी हमें मिलेंगे. तो पार्टनर्स क्या करते हैं? बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि बिजनेस ग्रो करे. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्या होता है, समटाइम्स हम किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ में एज अ पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं जो किसी ना किसी फील्ड में, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है. जब हम लेटर ऑन ये चैप्टर करेंगे वहाँ पर आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ोगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं हमारे पास. तो हमें उस पर्सन की उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. हाउ? पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स जो होते हैं वो फुली प्रोटेक्टेड होते हैं. बिकॉज अगर एक पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो वो सब पार्टनर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है. एंड लास्ट इज सीक्रेसी. वी कैन ईजली, बिकॉज बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को ही पता है, वो आपने किसी भी आउटसाइडर को डिस्क्लोज नहीं किए हैं. एंड वन मोर थिंग, जैसे कंपनीज़ होती हैं, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ में जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उनको अपनी आफ्टर 3 मंथ्स या एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होती हैं, बैलेंस शीट को पब्लिश करना होता है. तो उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो पब्लिक के सामने आती है. बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज हम पार्टनरशिप, हमने अभी पढ़ा है कि हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराएं या नहीं कराएं वो हमारी अपनी इच्छा है, वॉलंटरी हम करा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट compulsory. Okay, so today we have done characteristics and merits of partnership forms of organization. In the next lecture we will continue with its limitation and types of partners. I hope you understood the topic very well. Okay.